मेरे को समझ में आया कि आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपने प्रॉप एफटीएक्स बनाया है। अच्छा, मैं पहले आपको स्प्लिट करके बताता हूँ हमारा नाम हमने प्रॉप FTX क्यों रखा। प्रॉप मतलब प्रॉपर्टी, F मतलब फ्रैक्शनल, T मतलब ट्रांजैक्शनल, X मतलब एक्सचेंज। If at all there is a stock market where stocks are traded, we thought why not a fraction of a real estate could be bought and traded। प्रॉपर्टी कोई खरीदना चाहते हैं, सबसे पहले तो होता है इन्वेस्टमेंट, प्लस दूसरी चीज होती है उसकी प्रॉपर्टी के पेपर्स, ड्यू डिलीजेंस। वो हर एक के बस की नहीं, सबको कभी ना कभी प्रॉब्लम आई। वो सुनते हैं जी ये प्रॉपर्टी के पेपर्स ऐसे हो गए, प्रॉपर्टी में थोड़ा वो पहले से बिकी हुई थी, समथिंग लाइक दैट। सो वी थॉट फर्स्ट प्रॉब्लम इज विल सॉल्व दैट ऑल्सो। सो प्रॉपर ड्यू डिलीजेंस, इस प्रॉपर्टी का हम इसको वर्ड बोलते हैं वेट करना। उसको प्रॉपर हम सारे डॉक्यूमेंट्स एक एक सारे वेरीफाई करते हैं, चेक करते हैं, फिर अपनी वेबसाइट में डालते हैं। एनीबॉडी कैन डाउनलोड, उसको चेक करा सकते हैं। ट्रांजैक्शन बड़ा सिंपल है। प्रॉप FTX इज नथिंग बट Amazon ऑफ मार्केट प्लेस फॉर बाइंग एंड सेलिंग प्रॉपर्टीज। सेलिंग फॉर होम, B2B, एनी बिल्डर्स हु इज फेलिंग टू जो उसकी इन्वेंट्री उसके पास पड़ी हुई है, ही कैन लिस्ट इट ऑन प्रॉप FTX। हेलो एंड वेलकम टू राभा राशि फाउंडेशन। बहुत ही एक्साइटिंग पॉडकास्ट आज हम करने वाले हैं विद राजीव छाबड़ा। ही इज द फाउंडर एंड द ब्रेन बिहाइंड प्रॉप FTX, विच इज इनटू फ्रैक्शनल रियल एस्टेट। प्रॉपर्टी टोकनाइजेशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बहुत ही न्यू है मार्केट में, लेकिन राजीव छाबड़ा जी इज अ वेटरन इन दिस। आपका बहुत बहुत स्वागत है राजीव जी। थैंक यू राशि जी, थैंक यू वेरी मच। ही इज ऑल्सो अ स्पोर्ट्स लवर, वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, और सबसे बढ़िया बात है कि बिजनेसमैन के साथ होते होते ही इज ऑल्सो ही इज अ बिग इम्पैक्ट। नए बिजनेसेस को इंकरेज करना इनका पैशन है, इनका शौक है। तो राजीव जी, कैसी है आपकी जर्नी? कहाँ से आपने स्टार्ट किया, आज ये एम्पायर पे आप बैठे हैं भगवान की कृपा से। व्हाट हैज बीन योर जर्नी? लेट्स हियर। So far, so good. You just brought in something from my own mouth, which I was about to say. God has been kind. Just because with the God's blessings, initially I was always working for somebody, working for big corporates. I had an illustrious career in real estate for 35 years. When in 2016-17, I thought, because since I'm in Bangalore, whosoever is in Bangalore, and the startup bug will catch up with him. So I thought might as well start thinking on, a startup. And if a startup, my domain expertise is always real estate. So I could not think anything beyond that. And then since it is a tech city, so I thought anything related with property and tech, if we could, kind of combine it together. People might have heard about listing platforms like Magic Breaks, No Broker and all. They have a tech, but that is specific to classified. There you cannot purchase and sell property, and that too, property is restricted to be sold within a period of time, within a period of hours, so that it can be registered at that particular time. So sub-registrar office will be closed, you see. So we thought, if at all somebody is interested in buying property from US in India, there is a reverse time gap. Yeah. If it's 12 o'clock over here, it might be 11 in the evening. They might be 11 a.m. over there. How do they do it? So my thought, we were just thinking about a platform where anybody and everybody could invest, right? Then we heard something in the world which was caught up around 5-10 years back, the fractionalizing of real estate. We thought, yes, that is where we Indians can also do it. Since we all know real estate investments are high ticket size investment. Indians love real estate. They want to invest, but somehow we wanted a ticket size could be wherein, easily affordable for the people, for the masses, and also they should be able to take a quick decision. Not that they should start thinking, because property investment, you take your own time in thinking, identifying the properties. In this case, we thought it should be how should we make the decision to buy property should be instant. Also, he should be conscious and cautious when the people are when they are investing. But we thought
all these things we'll cover it while we were making prop FTX. सो दिस इज एब्सोल्युटली वंडरफुल और बहुत ही छोटे में आपने बहुत शॉर्ट वे में आपने बताया है अपनी जर्नी. मेरे को समझ में आया कि आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपने प्रॉप FTX बनाया है. आई वुड वांट यू टू एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट प्रॉप FTX. कैसे उसका यूजेज है, फायदे क्या हो रहे हैं लोगों को, इसके बारे में आप सबको बताओ. मैं राशिद जी बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा. मैं पहले आपको स्प्लिट करके बताता हूँ. हमारा नाम हमने प्रॉप FTX क्यों रखा. प्रॉप मतलब प्रॉपर्टी, F मतलब फ्रैक्शनल, T मतलब ट्रांजैक्शनल, X मतलब एक्सचेंज. Right? If at all there is a stock market where stocks are traded, we thought, why not? A fraction of a real estate could be bought and traded. That was a thought process. हमने सोचा इसको इतना आसान कर दो कि लोगों के पास एवेन्यूज नहीं है, शेयर मार्केट में लगाते हैं, म्यूचुअल फंड में लगाते हैं. तो हमने जो रोज़ एडवर्टीजमेंट देखते थे, सचिन जी बोल रहे हैं, हमारे महेंद्र धोनी साहब बोल रहे हैं, ये सही है जैसे म्यूचुअल फंड के बारे में. तो वी थॉट ऑन दैट लाइन, वी आर फ्रैक्शनलाइजिंग रियल एस्टेट ऑन दोज लाइन्स ओनली. तो ये हमने सोचा कि रियल एस्टेट का एक म्यूचुअल फंड हो जाए इस तरह का. राइट, दे कॉल इट SIPs, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान. हमने उनको सोचा क्यों ना हम इसको PIP बना दें, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट प्लान. But this is like you're filling the market gap. आपने एक मार्केट में एक नई चीज इंट्रोड्यूस की है which is known as PIP. Yes. This is amazing. Okay. Yes, we thought it over. Why not, you know? और वो बोलते हैं ये सही है, हम बोलते हैं आइदर तो मैं बोलूँगा ये ज़्यादा सही है, यहाँ बोलूँगा ये भी सही है. That's what I mean, just joking about it, you know. Yeah. But we thought main pain points when we are buying, जब हम प्रॉपर्टी को खरीदना चाहते हैं, सबसे पहले तो होता है इन्वेस्टमेंट, एक डिसीजन लेने से पहले. प्लस दूसरी चीज़ होती है उसकी प्रॉपर्टी के पेपर्स, ड्यू डिलीजेंस. वो हर एक के बस की नहीं है. सम टाइम यू नो एवरीबॉडी एट सम टाइम, और उनके फ्रेंड्स रिलेटिव्स ने सबको कभी ना कभी प्रॉब्लम आई हो. सुनते हैं जी ये प्रॉपर्टी के पेपर्स ऐसे हो गए, प्रॉपर्टी में थोड़ा वो पहले से बिकी हुई थी, समथिंग लाइक दैट. सो वी थॉट फर्स्ट प्रॉब्लम इज विल सॉल्व दैट ऑल्सो. सो प्रॉपर ड्यू डिलीजेंस, इस प्रॉपर्टी का हम इसको वर्ड बोलते हैं वेट करना. उसको प्रॉपर हम सारे डॉक्यूमेंट्स एक एक सारे वेरीफाई करते हैं, चेक करते हैं, फिर अपनी वेबसाइट में डालते हैं. एनीबॉडी कैन डाउनलोड, उसको चेक करा सकते हैं. दे कैन गेट इट वेटेड फ्रॉम देयर ओन लॉयर्स एज वेल. वन सेकेंडली, एज आई सेड, द टिकट साइज, वी थॉट लेट्स ब्रिंग इट डाउन टू यू नो स्मॉल टिकट साइज. तो इसको हमने जो अभी बनाया, हमने वी हैव ब्रॉट इट टू ऑलमोस्ट अराउंड 25,000, 30,000, 50,000. अब आप पूछेंगे ये इतना कम पैसे में कैसे प्रॉपर्टी हो जाएगी. सो व्हाट वी हैव ट्राइंग टू डू इज, इसमें एक चीज़ है फ्रैक्शन. जैसे किया, कितने फ्रैक्शन हुआ, इसको हम एक SPV बनाते हैं जिसमें स्पेशल पर्पस व्हीकल होती है. उसमें पीपल कैन पुट देयर मनी इन द SPV. From that SPV, we buy the property. SPV will be buying the property, which could be in the form of a private limited company. It can be LLP also. वो SPV ही जो है बिल्डर को उसकी वहाँ पे पैसा देगी, बिल्डर से वो प्रॉपर्टी SPV के नाम पे रजिस्टर होगी. ट्रांजैक्शन बड़ा सिंपल है. मैं प्रॉप FTX is nothing but Amazon of marketplace for buying and selling properties. Selling for whom? B2B. Any builders who is failing to जो उसकी इन्वेंट्री उसके पास पड़ी हुई है, he can list it on prop FTX. Right? And secondly, investors को मैंने खोला हुआ है, they can invest on those properties. Okay. Right? अभी उस चीज़ प्लेटफॉर्म इस चीज़ के लिए बनाया हमने. और ट्रांजैक्शन बहुत सिंपल है. We are not collecting any money directly from the investors. The money is going to the SPV. SPV से बाद में it is going through a escrow account. Escrow account होता है third party account. Right? Where unless and until both the parties, or if there are 3 parties involved, सभी लोग कंसेंट अपनी नहीं देते, अपनी हिंदी में बोला तो रजामंदी नहीं देते, तब तक वहां से पैसा मूव नहीं होता. वो पैसा मूव होकर सीधा बिल्डर के पास जाता है. बिल्डर से वो प्रॉपर्टी SPV के नाम रजिस्टर होती है. हम हैं फैसिलिटेटर. हम उन 2 जनों को, एक बिल्डर जो लखनऊ में बैठा हुआ है और एक प्रॉपर्टी किसने बेंगलोर में खरीदनी है, बेंगलोर वाला इन्वेस्टर हो सकता है लखनऊ वाले बिल्डर को नहीं जानता. हम उनके बिहाफ पे पूरी प्रॉपर्टी वेट करते हैं, उसको ऑप्शन देते हैं कि ये प्रॉपर्टी एक लखनऊ में अवेलेबल है,
जिसके आपको अच्छे रेंटल यील्ड्स आ रही हैं, आपको उसके रेंटल यील्ड्स मिलेंगी। हम हमारा पूरा, क्योंकि अगेन मैं आई रिट्रीट द फैक्ट, आई एम फ्रॉम बैंगलोर, यहाँ टेक के अलावा जिंदगी में सोते जागते सिर्फ टेक ही है, तो उसको हमने टेक बना दिया है। देयर इज वेरी वेरी मिनिमल ह्यूमन इंटरवेंशन, सारी चीजें हमारे बैकएंड पे हैं। हर आदमी, अगर आपने सपोजिंग एक प्रॉपर्टी लखनऊ में खरीदी है, एक कलकत्ता में खरीदी है, एक अगर आपने बैंगलोर में खरीदी है, आप दिल्ली में बैठी हुई हैं, आपकी प्रॉपर्टी की सारी डिटेल, कब आपने प्रॉपर्टी खरीदी थी, उसमें आपको हर 6 महीने में कितना रिटर्न बन रहा है वो आपके डैशबोर्ड पे होगा। कितना आज तक आपके पास पैसा आया है, वो मेरे को उसको कुछ नहीं करना, मेरे टेक ही आपके लिए करके देगा। एनी टाइम like a dashboard, you can check it anytime what at the present you have, what how much you earned on those properties you see. सारे details are with you. It's very easy to understand and say कोई concept को कि हाँ प्रॉपर्टी बेच और हम उसको सेल कर सकते हैं और खरीद सकते हैं, लेकिन प्लीज अंडरस्टैंड why we called him a veteran, because he totally has a grasp on the subject. इतना आसान नहीं होता कि हाँ भाई बेच दी, बहुत कुछ इन्वॉल्व होता है, देयर इज अ लॉट ऑफ माइंड गोइंग एंड देयर इज लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो क्या चैलेंजेस रहे होंगे आपके? इतना आसान तो नहीं होगा, आपको देख के भी लगता है। आई एम श्योर, मैं बोलूंगी नहीं पर फिर भी बोल देती हूँ कि बाल आपने ऐसे धूप में सफेद देखी है। बाल ही सफेद है, दिल भी जवान है, माइंड भी जवान है, राइट? बट technically you need to be smart what kind of technology to be used, and it should be not that which is available right now, it should be futuristic. करेक्ट। एक टेक्नोलॉजी आज अडॉप्ट कर रहे हैं, वो आपको मालूम है 2-3 साल 4 साल के बाद उसको फिर अपग्रेड करना पड़ेगा। तो हमारा पहला तो सोच ये थी, एक टेक्नोलॉजी पूरी फ्यूचरिस्टिक लेनी है, जो इसमें उसका यूज केस बन सके, उसी को हम अडॉप्ट करें। और यही हमारा रीजन था। अब फिर जो आपने बात बोली, बहुत अच्छी बात बोली कि प्रॉपर्टी लेना आसान नहीं है। प्रॉपर्टी के साथ 2 चीजें तो मैंने सॉल्व कर दी, टिकट सॉल्व कर दिया। दूसरी चीज हमने सॉल्व कर दी इसमें ड्यू डिलीजेंस, मतलब हमने वेट करके प्रॉपर्टी कर दी। तीसरी चीज जो होती है, आपने देखा होगा, लोगों ने सुना होगा, अंडर एंड डील्स बहुत होती हैं, सब चीजें बहुत होती हैं। इसको कैसे सॉल्व किया जाए? उसके अंदर पूरी ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी के अलावा आप सुनते हैं ना, पेपर फोर्ज कर दिए किसी ने किसी के, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो उसके लिए हमारे पास हमने वी हर्ड ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन, लोगों जिससे आप बात करोगे ना, दे विल बी थिंकिंग इट्स क्रिप्टो। नो, blockchain is a decentralized ledger all over the world where any and every transaction with the proof of concept are recorded over there. And that's why we choose this technology. In my backend, blockchain technology is used. If at all, राशि जी ने कोई प्रॉपर्टी खरीदी या किसी और ने भी खरीदी, आपके हस्बैंड ने भी खरीदी, ठीक है, वो पूरी रिकॉर्ड के साथ होगी, टाइम के साथ रिकॉर्ड होगी, पूरी एनक्रिप्ट होगी। आप उस प्रॉपर्टी को किसी को भी दिखा सकते हैं, बता सकते हैं उसके पेपर्स, बट वो उस पेपर्स को फोर्ज नहीं कर सकता। कुछ उसके पेपर्स के साथ एनक्रिप्टेड है। ओनली राशि जी कैन, इवन योर हस्बैंड ऑल्सो कैन नॉट फिडल विद इट अगर आप चाहें तो। आई मीन टू से, just to tell how secure it is. Yeah. Unless until you want to tell, you give your password, इसको इसमें बोला जाता है हैश की. You pass on the hash key to him, he'll only be able to do it. Right? And transactions in blockchains are multiple transactions. आपको पता ही नहीं होगा रिकॉर्ड कौन से कंप्यूटर में, वर्ल्ड के किस कंप्यूटर में हुई होगी। ट्रांजैक्शन आपने बैंगलोर या हो सकता है हैमबर्ग में हुई हो, उसकी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, उसका एक पीस, एक सेंटेंस लग्जमबर्ग में हुआ, ये नोड्स में चलता है। तो इसीलिए इसको वापस नहीं कर सकते, इसको एनक्रिप्टेड होता है, इसमें चेंजेस नहीं कर सकते। तो ये हमारे लाए। फिर आई विल गो फर्दर अप। एक चीज और सॉल्व करने वाली होती है रियल एस्टेट में। पीपल नो कि भाई ये प्रॉपर्टी तो मिल रही है। अब यहाँ तो प्रॉपर्टी हमारे पूरे इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में ट्रेडिशन है प्रॉपर्टी खरीदी और बेची कैसे जाए। खरीदी जाती है, यहाँ तो आप खरीदना चाहेंगे तो यहाँ तो बिल्डर से डायरेक्ट खरीदेंगे अगर आपके वो पहचान के हैं, और यहाँ फिर आप खरीदेंगे रियल एस्टेट एजेंट से। इसके अलावा प्रॉपर्टी नहीं बिकती इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में ये ट्रेडिशन है, इसी तरह बिकती है। सो आपको भी मालूम है, जितना मर्जी आपको बोल दे, जितना मर्जी व्हाटएवर बिल्डर कैन से इज योर फ्रेंड,
After all, he's a businessman. Yeah. He'll can keep something. Yeah. If X is buying a property at Y rate, Z might be, charge X plus something, right? Oh, sorry, Y plus something, Yeah. or whatever, एक दो तीन आदमी का ट्रांजैक्शन कभी सिमिलर नहीं होंगी। 5,600 में अगर रेट में उसने पर स्क्वायर फीट बेचा, दूसरे को हो सकता है 5,650 में बेचा हो, तीसरे को हो सकता है 5,700 में। आप एक दूसरे के जानते भी होंगे, बाद में 6 महीने बाद पता चलेगा। अपने वाले बिल्डर तो मेरे पहचान का था, बिल्डर की गलती नहीं है, वो बिजनेसमैन है। वो अगर उसने घोड़ा घास से यारी कर लेगा तो कमाएगा कैसे? True. Right? He has invested. I mean, it's not that I'm taking side of him. Builder is smart. He's in the business. सभी काम कर रहे हैं। सभी काम कर रहे हैं। काम कर रहे हैं और काम I करेंगे। respect that. And adding to this, जो लोग बिना पैसों के काम करते हैं ना, वो काम नहीं कर रहे। नहीं कर रहे होते, वो सिर्फ लोगों को हल्का सा मिसडायरेक्ट कर रहे होते हैं। अगर बिल्डर ने बनाया खून पसीना लगा के तो कर रहा है। अब दूसरी चीज है, इसमें रियल एस्टेट एजेंट आता है, उसके थ्रू प्रॉपर्टी लेते हैं। हमने कहा इसको भी सॉल्व कर देते हैं। थोड़ा बिल्डर लोग थोड़ा उदास होंगे, बट लेकिन मैंने उनके लिए भी यूज केस बनाया। इसको हम वाइट लेवलिंग इट, प्लीज हियर मी आउट। Incidentally, they'll be able to use, the banks will also be able to use in technology हमने क्या किया? Okay. आपने ब्लॉकचेन का नाम सुना, क्रिप्टो का, AI का नाम बहुत सुन रहे हैं। हाँ जी। भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है जी? जी। व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बियॉन्ड होती है ML, उसको बोलते हैं मशीन लर्निंग। हाँ। उसके बियॉन्ड होती है DL, दैट इज डीप लर्निंग। डीप लर्निंग मतलब आपने जो ट्रांजैक्शन या चीजें हैं वो पूरी रोबोटिक हो जाती हैं। मतलब रोबोट आपको मालूम है गलती नहीं करते। सो वो जो एनालिटिक्स होते हैं उस इस तरह फीड होते हैं, वो फिर गलतियां नहीं होती। तो फिर हमने क्या किया, इसको कैसे प्रॉपर्टी में कैसे यूज किया जाए। अब सपोजिंग आप मेरे साथ यहाँ पे MG रोड पे हैं। MG रोड में अगर आप दिल्ली में हैं, गुड़गांव में आप रहती हैं, आपको पता कैसे चलेगा जी MG रोड में व्हाट इज द रेट्स गोइंग ऑन? सो अगर even conversely, even I don't know what are the rates going on, Gurgaon, particularly where you are staying, particularly where the property is being sold. So to solve that problem, what we have done is we have, wherever the property is located in 6 kilometer of the dia, 3 kilometers either side, उसके radius में क्या rates चल रहे हैं, present rates. What were the rates 5 years back? What were the rates 10 years back? And what would be the rate 5 year hence? वो हमने पूरी एनालिटिक्स बना दी है, Okay. which is almost 95 to 96% correct. Accuracy जितना मेरे को डाटा और आ जाएगा, जितना फीड करते हैं, कंप्यूटर इज एन इंटेलिजेंट इडियट। वो आपके कमांड में तब आएगा जिसको उसको कुछ खिलाते पिलाते रहोगे, मतलब डेटा खिलाते रहोगे। दैट इज AI है, अगर हिंदी में मैं स्पष्ट शब्द में बोलूं, राइट? सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। सो उसके एनालिटिक्स हमारे इन हाउस एनालिटिक्स हैं जो हमने बनाए हुए हैं, वो प्राइस की प्रेडिक्शन पूरी बता देगा आपको। और हमने क्या किया, शेयर मार्केट के पैरेलल वो एक पूरे ग्राफ में चलेगा। ग्राफ में 2017 में उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का 2017 मार्च में क्या रेट था, 2022 अक्टूबर में क्या रेट है, 2023 में नवंबर में क्या रेट था, वो आपको ग्राफ में आएगा। आपने अपना, सबको कंप्यूटर चलाना आता है, कर्सर लाके वहां रखना है ग्राफ पे, वो आपको बताता रहेगा किस तरह रेट चल रहे हैं। सो देन यू कैन टेक अ कॉन्शियस कॉल। एक आप कॉल ले सकते हैं। फिर हमने इसको, ये तो माइक्रो डाटा हो गया, हमने इसको AI को मैक्रो में भी फिट कर दिया। अब हम आपने अगर सपोजिंग यू कम टू आवर वेबसाइट, वी विल शो इट टू यू विच मार्केट इज डूइंग बेटर। मैक्रो मार्केट जैसे मेट्रो में है, मुंबई इज डूइंग बेटर, और दिल्ली इज डूइंग बेटर, और हैदराबाद इज डूइंग बेटर, और बैंगलोर, और व्हाटसोएवर वेयर यू वांट टू इन्वेस्ट, विच प्रॉपर्टी इज डूइंग बेटर, residential is doing better, commercial is doing better, or land or plotting is doing better. So you will have take a call. आपको ऐसा नहीं कि सिर्फ बेंगलोर में प्रॉपर्टी वहीं लेनी है। सो आपके पास ऑप्शंस हैं वहां पे। फिर आपने पर्टिकुलर एक प्रॉपर्टी सेलेक्ट की, अगेन आई टेक अ एग्जांपल ऑफ MG रोड। MG रोड आपने कहा, उसका माइक्रो डाटा जो है, MG रोड में पहले तो क्या रेट्स चल रहे हैं, फिर जहाँ प्रॉपर्टी है, MG रोड भी तो छोटा नहीं है, इट्स अराउंड बहुत बड़ा है। तो इसमें फिर जो हम पर्टिकुलर जहाँ प्रॉपर्टी है, क्योंकि एक प्रॉपर्टी X जगह में हो सकती है, MG रोड के Y हो सकती है, तो उनके हर के लोकेशन एडवांटेजेस अलग हो सकते हैं। एक के पास मॉल हो सकती है, एक बस रोड बड़ी हो सकती है, एक अंदर करके बना हुआ है, एक के साथ थोड़ा छोटा मोटा क्लस्टर ऐसा लगा हुआ है, और यहाँ नाला ही चल पास में है। सो उस प्रॉपर्टी और उस प्रॉपर्टी को सेम नहीं कर सकते।
सो उसको एनालिटिक्स करने के लिए पूरा माइक्रो में जाते हैं, वेयर द प्रॉपर्टी इज लोकेटेड, व्हाट आर द एडवांटेजेस इट इज हैविंग, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस अराउंड दोस प्लेसेस, उसको पूरा फैक्टर इन करते हैं. तो इसीलिए हम वी कम टू अ मैक्रो रेट्स, माइक्रो रेट्स, माइक्रो रेट्स. सो उसको आपको किसी को भी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, दे कैन इन्वेस्ट. I would like to tell all my viewers and listeners, get on a call with him. बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है, प्रॉपर्टी खरीद रहे हो और आप प्रॉपर्टी को बेच रहे हो, लेकिन ये भी वही कॉन्सेप्ट है बट इसमें थोड़ा स्टाइल है. वो स्टाइल सीखने के लिए और ज़्यादा फायदे लेने के लिए, कम पैसे लगा के ज़्यादा प्रॉफिट्स मिलने के लिए, गेट ऑन अ कॉल विद राजीव छाबरा. He will guide you the way he has explained on the podcast. वो आपकी ज़रूरत को क्यूरेट करके आपको बताएंगे. And believe me guys, he has an excellent, legal team जो एक एक पेपर चेक करती है. He himself is very particular and बिल्कुल डेप्थ में जाके प्रॉपर्टी के ओनर्स, उनकी डिटेल्स और सब कुछ निकाल के उनसे आप ज़रूर बात करिए. His details are available on the podcast. Okay, now this is absolutely insightful what you have shared with us. Rajiv ji, I would want you to tell me the future plans. Where are you going to take Prop FTX now? Well, we have sorted this, technology at least. Technology is a beast. You need to conquer it. You need to tame it. Yes. But you can work wonders with it once it is tamed. जैसे कहते हैं ना, इसको अगर आपने पाल के उसका अपना बना लिया, so then you can get the best use of it. Now I'll tell you, we have made a technology which is in the international level technology. We can plug and play. If I want to start the same replica of this in Dubai, I can just plug and within, सिर्फ मेरे को पेमेंट गेटवेज वहाँ पे लगाने हैं, पीछे APIs लगानी है, I can start from there. Same platform I can replicate in Singapore also. Anywhere I can do it. Plus upgradation. Now if we talk about blockchain, अभी blockchain is at the back end. मैं इसको अगर Web3 प्लेटफॉर्म पे लेके जाना चाहता हूँ, प्रॉपर अभी हम फ्रैक्शनल बोल रहे हैं, टोकन नहीं वर्ड बोल रहे, बिकॉज इंडियन गवर्नमेंट जो है टोकन वर्ड यूज करने के लिए मना कर रही है. बट इट कैन हैपन, इट हैज टू हैपन थ्रू गिफ्ट सिटी. Okay, why is this? Main problem is SEBI has different rules. Okay. Ministry of Finance has different rule. They're adopting to the technology, right? मैं कह रहा हूँ, हमने तो उल्टा. My suggestion would be technology को we should be able to, because we can do it. So in my previous talk with SEBI, one seminars and all, I've talked about it. So Gift City we are going. Okay. Our next goal is to go international. Okay. We are also will be launching in Dubai. Okay. Right? There will be going tokenization. Tokenization क्या है? Tokenization में क्या है? I can token it into rupees. Okay. मैं cents में. Okay. अगर आप बोलेंगे ना, एक AED मतलब एक दराम की प्रॉपर्टी करनी है, उतने में भी टोकन हो सकता है उसको. Okay. उसको स्प्लिट करना टोकन फॉर्म में, जैसे शेयर फॉर्म में. इट इज द इजिएस्ट. इट इज नॉट दैट मैंने वो बना रहा हूँ, यस आई एम द पायनियर इन दैट. इट इज ऑलरेडी हैपनिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड. विद ब्लॉकचेन इट इज वेरी इजी टू डिवाइड Okay. into fractions, into tokens. Okay. Tokens is what? लोग क्या बोलते हैं? टोकन का मतलब क्या है? आजकल पूरे वर्ल्ड में आपको शायद मालूम नहीं होगा. आपको एक कोई भी डिजिटल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, आप अपना कार्ड भी स्वाइप कर रहे हैं, उसमें जो डिजिटल नंबर होता है ना, उसको बोला जाता है टोकन. Okay. सो दैट आप कभी आप चेक करना, स्टेटमेंट चेक करेंगे ना अपनी, उसमें लिखा रहेगा टोकन. अभी इट बी वेरी इजी वर्ड नाउ. Token number. टोकन नंबर. हम सोचते थे बैंक का वो टोकन नंबर, वो नहीं है. इट इज द टोकन ऑफ द ट्रांजैक्शन. डिजिटल ट्रांजैक्शन विच इज रिकॉर्डेड इज दैट हैविंग अ टोकन नंबर स्पेसिफिक. जो आपका टोकन और दूसरे का टोकन सेम नहीं हो सकता. बेशक आपने भी 50 रुपए डाले हैं या निकाले हैं, दूसरे आदमी ने भी निकाले हैं, वो विल बी डिफरेंट ट्रांजैक्शन. अमाउंट माइट बी द सेम. So that's how it is going to happen. And madam, India is not far behind. Yeah. Abhi, our chairman of SEBI, Madhvi ma'am, is way ahead. She is talking about a word called sachetization. What is that? Sachetization. आपने शैम्पू पहले खरीदते थे पूरी 200 ml की, फिर आया सैशे बन के. जी.
राइट, 1 ग्राम का 200 से, जी। ऐसे ही होने वाला मैडम. Oh, She is having that kind of vision, okay. and it is going to happen. And blockchain is going to be used by sub registrars anywhere and everywhere. आपकी जी प्रॉपर्टी के ट्रांजैक्शन है, कभी कभी आप पेपर लेने जाते हो, बोलते हैं जी 30 साल पहले रिकॉर्ड दिखाओ, 40 साल उसकी ओनरशिप प्रूफ दिखाओ, इसकी मदर डीड दिखाओ, वो सारी होके पूरी रजिस्टर सारी चीजें जो होंगी ब्लॉकचेन में हो गई, तो आपको बार बार जाना नहीं है. सब रजिस्ट्रार इवेंचुअली in 1 year time will be using all this transaction through blockchain. I can tell you in advance. There are some states which have adopted already. I can tell you West Bengal has taken the lead. Telangana has already taken the lead. Bangalore is already going for that. Delhi will also go for it. This digital transactions will be taken care. Now government is also talking about डिजिटल टोकन ऑल्सो, CBDC की बात कर रहे हैं, डिजिटल करेंसी की बात कर रहे हैं. तो मैडम हमारी गवर्नमेंट लगी हुई है जी. हो रहा है ये काम जी. और हम बड़ लेकिन है स्टार्ट में, जैसे आपने बड़ा फ्यूचर प्लान्स किया, वी प्लान टू मेक इट बिग एंड वी आर ऑलरेडी ऑन द लाइन टू दैट. और इसमें स्केल करना मुश्किल बिल्कुल ही नहीं है. और मेरे को इसमें जैसे प्रॉपर्टी है, हमारे ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस डॉलर की प्रॉपर्टीज पड़ी हुई हैं. जैसे सपोजिंग आपको ही अपना मकान बेचना है, आप यू डोंट कम एज अ बिल्डर, यू पुट योर प्रॉपर्टी ओवर देयर, कीप 25% ऑफ इट, 75% बेच दीजिए. आपको फिर अगेन मैं बोलता हूँ, प्रॉपर्टी की वैल्यू नोशनल है मैडम. आपने जब तक उसको बेचोगे नहीं, बेचने के लिए मार्केट प्लेस में डालोगे नहीं, तब तक प्रॉपर्टी की वैल्यू कुछ नहीं है. इन शॉर्ट आप बहुत से झंझटों से भी छूट रहे हो, you know, which is, I think, which is commendable work, you know, Rajiv ji. Now because you have spoken so much about retail, I have some quick rapid fire questions for you. Sure. Okay, so if your real estate could talk, what would be its favorite song? मैं तो मैडम ओल्ड स्कूल का आदमी हूँ, ऐसे ही बोलूँगा क्योंकि सब लोगों को रियल एस्टेट का मालूम नहीं. न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है मेरा हमदम मिल गया. तो बस वो प्रॉपर्टी मिल जाएगी आपको. So nice. Okay, what's the quirkiest thing you've seen in a property listing? मैडम आई वाज सरप्राइज, एक बार किसी ने लिस्ट किया कि सबको 1 inch ऑफ द प्रॉपर्टी यू कैन बाय नेक्स्ट टू मन्नत. मन्नत है जी शाहरुख खान का घर. 1 inch. आई वाज सरप्राइज. अच्छा. उसके ऑपोजिट है. अब वो कितना सच है कितना झूठा है, दैट वाज द स्ट्रेंजेस्ट क्विकेस्ट, आई मीन यू नो, वेरी क्विकी वन. आई वुड क्विकी वन. Yeah. Okay. Yeah. So if you could own any fictional property, which one would you pick and why? मैडम बचपन से पढ़ते थे कि भाई एलिस वेंट टू एलिस, यू नो, वंडरलैंड. Yeah. उसके पड़ोस वाली प्रॉपर्टी ले लेंगे एलिस में. So we have another Alice in Wonderland. So guys, please, it's not just about a woman and a man. It can be just Alice. Alice. Yeah. Wonderful. Okay, what's the strangest thing someone has tried to buy with blockchain? Madam, you will be surprised. Can you believe it? None over here could believe it. People listen to me, madam. People have bought God. What are you talking? Madam, Really? NFT was created by a pastor. He made $3 million. He said, just stated a fact that, not a fact, a dream. Yesterday, God came to my dream. He wanted me to be in the form of NFT. Madam, people bought it, you know. Can you beat that? Yeah, no, actually, I'm getting goosebumps. Like, really? You type it in Google, you'll check it. Okay. Yeah. Okay, if AI had a personality, what kind of real estate agent would it be? ओह, रियल एस्टेट एजेंट को थोड़ी प्रॉब्लम होती है प्रॉपर्टी के बारे में समझाने. वो मैं सोचता हूँ पीसी सरकार हमारे जादूगर है ना, वो हो जाए तो प्रॉपर्टी पूरी ड्रॉ करके ही बता समझा देंगे इनको. Very nice. Yeah. So, what's the funniest name you've heard for a property or a development? ओह मैडम, ये भी बड़ा मजेदार है. मैं दिल्ली में था, वो अब बुरा नहीं मानना जी, गुलशन जी एक टॉयज वाले हैं. दे हैव इनटू प्रॉपर्टीज, यू नो. Okay. उनका नाम ही गुलशन टॉयज. प्रॉपर्टी का नाम. प्रॉपर्टी का नाम भी उनके नाम से उन्होंने किया है, बट दे आर डूइंग गुड जॉब इन नोएडा एंड ऑल. Okay. बट गुलशन टॉयज इनटू प्रॉपर्टीज. अब मेरे को थोड़ा वो है भी थोड़े गोलू गोलू टाइप के. बड़ा If
If you had to live in one type of building forever, like a castle or a tree house or a skyscraper, which one would it be? Madam, I'm a very practical person. I'm not a dreamer. Skyscraper. Oh, okay, Yeah. nice. Yeah. So if you could create a slogan for Prop FTX using a movie quote, what would it be? Oh, my team would be knowing about it. मैं दीवार वाला डायलॉग बोलता हूँ जो हमारे अमिताभ जी बोलते हैं, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, कैश है, तुम्हारे पास क्या है? मैं बोलता हूँ मेरे पास प्रॉप एफटीएक्स है. Wow. This is like wonderful, I would say. Okay. What's the most unusual feature you've come across in a luxury property? मैडम आप सुन के हैरान हो जाएंगी, Okay. बट पीपल आर डूइंग इट Okay. all over the world. Okay. They're saying, you know, a open air bathroom you will have, madam. Can you believe that? But they are doing it. What is that? That is, madam, open air. They are, you know, with the glasses, Okay. and then all that fresh air. You can see outside. You'll Okay. feel the nature. Yeah. Others will not be able to see you. Okay. Well, that is kind of, you know, a spa kind of experience they're trying to create. Lot of builders have created. अच्छा. हाँ जी. मैं Even पहली in बार- आपके गुड़गांव में भी हैं लोगों ने किया हुआ. Acha, good I met you because at least I got so much of knowledge. This yeah. is okay. So Rajiv ji, before we close down, I would like to know what has been your success mantra and a balance mantra all your life. But all through life, I'm afraid of only one person, that is God. Beside God, only my parents. मैंने ज़िंदगी में पहली बात तो डरा नहीं, और डरा इसलिए भी नहीं तो गुरु मंत्रा जो मेरे माँ बाप ने सिखाया, अच्छा काम करो, सही काम करो, पैशन के साथ काम करो. वो बट एक चीज़ और भी है, मेहनत भी करनी है. खाली ड्रीमर नहीं रहना. Dreams you can, if you have the passion, you can make it a reality. Yeah. Otherwise, dreams will remain dreams, you know. तो मेरा तो मंत्र यही है, काम करते रहो, अच्छा काम करते रहो, लोगों की दुआएं लेते रहो, और आपको सक्सेस मिलेगी मिलेगी. राशि जी, as I told you, we do anything and everything. I want to work under the ambit of the law. Yes. मेरे को I don't want to go beyond the law. दूसरी चीज़ मैंने एक चीज़ थंब रूल सीखा है. Wherever in my corporate world, wherever I worked, I've seen जितना आप ट्रांसपेरेंट, जितना लॉ के साथ चलते हैं, उतना दूर तक स्केल कर सकते हैं. जी. आपने भी सुना होगा जो कंपनीज कुछ आई, अब यू नो दे प्रोग्रेस वेरी वेल, बट दे वर नॉट विद द लॉ, एंड दे वेंट लाइक दैट एंड वेंट डाउन. Right, they are old corporates like Tata's and Kirloskar and big companies are still there, you know, Birla's. Why they are surviving? They have been following with the compliances. That's what I feel, you know. If you have to go in the longer run, you need to follow the land of the law, right? Second जो चीज़ है मैंने, which I have learned in real estate, and as the luck would have it, मैंने उस कंपनीज में जिसमें भी काम किया है, मैंने सबसे पहले उनको बोला मैं कस्टमर के अगेंस्ट कोई काम नहीं करूँगा, गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई काम नहीं करूँगा, कस्टमर. वही चीज़ें मैंने यहाँ पे डाली है. कस्टमर को, अगर कस्टमर को आप सचमुच, जो आपको बोला जाता है, आपके धर्मों में भी बोला जाता है, कस्टमर जो है भगवान है, सचमुच अगर मान के चलेंगे तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, कोई आपका रास्ता रोक नहीं सकता. उस रास्ते में, हर रास्ते में रोड़े होते हैं, पत्थर बोलते हैं लोग होते हैं. डेफिनेटली it might be a tough journey, but eventually you will win. And मेरे को जो है, I am at whatever age I am, मेरे को I am very passionate about real estate. I want to leave a legacy for the people and for the youngsters, for everybody. I will make a platform they feel happy to invest in, and they are happy to move around, and they can be, you know, brag about it while investing to the parents also. कि मैंने देखिए इतने पैसे कमाए हैं. मैं तो उनको बोलूँगा, प्लीज़ आई विल रिक्वेस्ट देम, ये जो शॉर्ट टर्म गेन्स वाले कुछ हो रहे हैं, गेमिंग के हैं, या दो चार चीज़ और एवेन्यूज़ हैं, क्विक मनी के लिए मत जाइए प्लीज़. जो आप, आई विल नॉट से टोटल स्टॉक मार्केट, और जो आपको कुछ गाइड करते रहते हैं आप कीजिए, बट hedge yourself with investing in real estate. इसमें आपको रहना चाहिए. It is a tangible asset. I repeat that again. Tangible. Transparency हम देंगे आपको. Trust हम देंगे. यही मेरी टैगलाइन है. Trustworthy, tangible, ये आपको हम देंगे आपको. Right?
ट्रांसपेरेंसी हम देंगे, right? So you have to see to it. I'll encourage all Gen Z people, you see, you come, have a look, and luckily for you, this platform is for the people who knows a bit of tech, and you will love it. सो बिल्कुल मत डरिए प्रॉपर्टी खरीदने से, कंफ्यूज मत होइए प्रॉपर्टी खरीदने से, और अगर आप कंफ्यूज हैं तो राजीव जी से बात करिए। उनका नंबर, उनकी डिटेल्स पॉडकास्ट में अवेलेबल है। कॉल हिम, कंसल्ट हिम, टॉक टू हिम, अंडरस्टैंड फ्रॉम हिम। ही विल गाइड यू द करेक्ट वे एंड आई एम श्योर you'll be able to make some profits. राजीव जी, आपका बहुत बहुत थैंक्स। Sure, thank you, Rashi ji. All the best to the viewers.